that SS Khanna Girls Degree College has established the Institution Innovation Council as per the norms of Innovation Cell, Ministry of Education, Government of India. Ministry of Education launched this Institution Innovation Council program in collaboration with AICTE for higher education institution to systematically foster the culture of innovation and a startup ecosystem in education institution. The objective of IIC is to prepare the student with a skill like critical thinking, design thinking, innovative thoughts, process, and entrepreneurial mindset. As one of the fastest growing large economies in the world and a population of nearly 1.3 billion people, India displays vast potential for business opportunity. We have many talented and brilliant minds, but India is still limited, leading in the innovation and ecology. How can South Korea, a country of 50 million people, produce globally competitive companies like Samsung, Hyundai, LG, while India, a country of 1.3 billion peoples, is yet to produce a globally competitive product company? It is matter of thinking and discussion. So today we have eminent speaker, Dr. Hemlalata Pant ma'am, who will discuss how we can create a startup ecosystem and become an entrepreneur by mushroom cultivation, a small startup. Welcome, ma'am. Dr. Hemlalata Pant ma'am is presently Sage Assistant Professor, Department of Zoology, CMP Degree College, a constituent college of University of Allahabad. Dr. Pant has did her DPhil degree from University of Allahabad. She is having 17th year of research and teaching experience in the field of nematology, post-harvest disease of guava and their management by different plant extract, yeast and mushroom cultivation techniques. She has published 63 research papers, 19 book chapters, 125 popular Hindi articles, 1 training manual, and 18 authored edited books. Dr. Pant is fellow of 7 reputed societies. She has awarded by Dr. Rajan Jagdish Chandra Bose Hindi Granth Lekhan Award from DBT Government of India, New Delhi in the year 2015. She got consolidated prize in Hindi article writing competition from Hindi Vigyan Sahitya Parishad Barg, Mumbai in the year 2012, 2014, 15, and 16. And she has also got 31 awards like Young Scientist Award, Distinguished Service Award, Priyag Gaurav Award, Paryavaran Mitra Award, and many other of popularization of science from different organizations. Dr. Pant has delivered 16 TV and 19 radio talks on their specialization field, and she has delivered more than 200 innovative talks on mushroom cultivation and organic farming in IFCO Allahabad, HETC Allahabad, and National Horticulture Mission Kaushambi. Welcome, I will cordially welcome, ma'am. Now, A very good afternoon. I hope I'm audible to everyone. Am I audible, Rishi? Okay. Carrying on with our startup innovation startup ecosystem in India. चलिए बोलिए बोलिए
Dr. Hemlata Pant, Honorable Secretary. She's a young academic who is establishing a name in her field. And we are very thankful and proud, hope that you will agree to share your presence on mushroom production as a step towards self-interest. We all agree that we have a perfect innovation ecosystem which includes universities, government, corporations, foundations, entrepreneurs, mentors, and very well. And each one of them makes significant role in creating the value in the form of larger startups by transforming new ideas into reality to financial and also create jobs, as become a developed country, as we are a developing country, as become a developed country, India needs to see wake of its growth and create 90 million non-farm jobs between 21 to 30. So in today's session, we have an opportunity to learn how these innovation ecosystems to create an access to information and resources for ideas to transform into reality. And as an innovator or entrepreneur, we will learn today how to develop and launch solutions to solve real-world problems. Dr. Pant, the deliberations will be very rich and very fruitful to our faculty as well as our students. A very warm welcome to you, Hemlata ji, from SS Khanna Girls City College, from the faculty, from the students, and of course the IIT team, which is working here to organize these various startup programs. A very warm welcome to you once again, and over to Rahman to carry on with the session. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have Dr. Hemlata Pant, ma'am. Ma'am, please deliver your talk. Okay, thank you, Hemlata, sir. ma'am. Yes. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Yes. Respected Professor Lalima Singh, ma'am, Principal, SS Khanna Degree College, Prayagraj, Dr. Rahman, sir, all the respected faculties of SS Khanna Degree College, and all the organizing faculties of this webinar, Dr. Anuradha Singh, and my dear students. My topic is today mushroom production, a step towards self-employment. तो आज मैं एक कंप्लीट मशरूम के बारे में आप सबको जानकारी दूंगी, जिसमें कि मेरा बेसिक जो एम होगा वो ये होगा कि किस तरह से हम मशरूम कल्टीवेशन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ें। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो इस समय लगभग 1.39 बिलियन हो गई है, और पूरे विश्व की जनसंख्या का हम इस समय लगभग 17.7% है। आप सभी को ये पता है कि भारत चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रख रहा है। भारत के गांव में लगभग 93 करोड़ लोग इस समय रह रहे हैं, और अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखें तो लगभग 43 करोड़ लोग इस समय शहरों में निवास कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 2.15 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी हैं, और ये संख्या जो है वो केंद्रीय राज्य कर्मियों के साथ साथ रक्षा कर्मियों की मिलाकर के है। हमारे देश में इस समय 118.7 मिलियन किसान हैं, जो कि कुल ग्रामीण आबादी का लगभग 31.55% है। अभी भी हमारे देश में लगभग 18.6 लोग अनएम्प्लॉयड और लगभग 393.7 मिलियन लोगों को उनके पास
बहुत ही लो क्वालिटी का आज भी रोजगार है। हमारे देश में लगभग 10 मिलियन लोग प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और आप सभी जान रहे हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अभी हम सभी कोविड-19 जैसी बीमारी से जूझ भी रहे हैं और इस बीमारी ने हमारे आय के लगभग जो भी संसाधन थे वो बंद भी कर दिए हैं, क्योंकि जितने भी प्रवासी कर्मी थे वो अपने अपने होम टाउन में आ गए हैं और ज्यादातर लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी भी ये कोविड-19 कब तक रहेगा इसका कुछ पता नहीं है और इसके साथ-साथ आप देखते हैं कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी अ, आ जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि बाढ़ आई हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए थे, बहुत लोगों का अपना रोजगार छीन गया था और अब आप सोचिए उनको कितनी परेशानी होगी। इसी तरह से नेचुरल डिजास्टर्स में जैसे सूखा है, कहीं साइक्लोन्स हैं, कहीं तूफान है, कहीं भूकंप है, ऐसी आपदाएँ कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में कभी न कभी आती ही हैं। ठीक है? अब देखिए, जब इस तरह की आपदाएँ आती हैं तो बहुत सारे लोग वापस जहाँ वो अपना सर्विस करते हैं या रोज़गार का जहाँ उनका संसाधन होता है, वहाँ से वो लौट के अपने होम टाउन में आते हैं और वापस वहाँ उनको फिर से बहुत मेहनत करती है अपने नए रोज़गार के लिए। जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि खेतों का आकार भी बहुत छोटा होता जा रहा है और इसके साथ-साथ आर्थिक उदारीकरण के कारण सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी ये दोनों ही कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत को आप जानते हैं कि गाँव का देश कहा जाता है और भारत के उत्थान और पतन की जो कहानी है वो आज भी विशेष रूप से गाँव की गाथा बनी हुई है। ध्यान रखिए या स्मरण रखिए कि खेती किसानी और औद्योगिकरण इसमें संतुलन और सामंजस्य गांव के अस्तित्व पर यानी एग्जिस्टेंस पर ही निर्भर करता है। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जिस गति से अंधाधुंध जो है नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके कारण आप देख रहे हैं कि गाँव हमारे सिमटते जा रहे हैं, गाँव हमारे कम होते जा रहे हैं और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हो रहा है, क्योंकि जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट करके चले जा रहे हैं। ठीक है? सवाल ये है कि जब हमें अगर ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने गाँव के यूथ को गाँव में रोकें और ये तभी संभव होगा जब हम उस युवा वर्ग को अपने कृषि आधारित जो व्यवसाय हैं उनके बारे में अवेयर करें या अपने बहुत सारे लोग जिनको सरकारी सर्विस नहीं मिल पाती है उन सब लोगों को हम प्रमोट करें कि हमारी जो लाइफ साइंस का की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं या कृषि आधारित जो व्यवसाय हैं उनको हम प्रमोट करें और उनको सिखाएं। तो ऐसे बहुत सारे कृषि आधारित व्यवसाय हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, जैसे उदाहरण के लिए पशुपालन, इसके बाद डेयरी उद्योग, फिशरीज, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, है ना? इसके बाद आप लाख की खेती, हम इसके बारे में भी अवेयर कर सकते हैं। राज्यों में जिन चीज़ों की सुविधा है, वहाँ हम उस तरह की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। इसके बाद मोती उद्योग भी बहुत अच्छा संसाधन है। बकरी पालन, सुअर पालन, बतख पालन, बटेर पालन, झींगा पालन, जैविक और कार्बनिक उद्योग में भी बहुत संभावनाएं हैं रोजगार की और फ्लोरिकल्चर है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, ये सारी चीजें, बांस के बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनते हैं और मशरूम उत्पादन। तो आज चूंकि मशरूम उत्पादन की चर्चा करनी है मुझे, तो ये सारे मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि इन सब चीजों में रोजगार की संभावनाएं कहीं ना कहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप एक अच्छी एक अच्छी ट्रेनिंग लें, अच्छा प्रशिक्षण लें और बहुत धैर्य से आप अगर अपने स्वरोजगार को करें तो वो दिन दूर नहीं जब आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, आते हैं अपनी बात पर। आज का जो मेरा विषय है वो यही है, मशरूम उत्पादन स्वरोजगार की ओर बढ़ता हुआ एक कदम। पहली बात तो हम ये करते हैं कि मशरूम है क्या? मशरूम अ, अभी भी हमारे भारत देश में मशरूम के प्रति बहुत लोगों की रुचि नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं इसे लोग सब्ज़ी मांस कहते हैं और अगर आप लोगों ने जो लोग जुड़े हैं मशरूम का सेवन किया होगा तो कहीं न कहीं आपको भी जो इसका स्वाद है वो
मांस जैसा ही लगता है, या कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रीला या जो सोयाबीन की बड़ियां होती हैं उसके जैसा इसका स्वाद लगता है। तो और मशरूम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, शायद इसलिए भी लोग बहुत अधिक मशरूम की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि मशरूम, भले ही आप मशरूम ना खाएं, मशरूम ना उगाएं, मशरूम के प्रोडक्ट्स ना खरीदें, लेकिन आपको सही जानकारी जो है मशरूम के प्रति होनी चाहिए। मशरूम एक प्रकार का फफूंद है, यानी ये एक फंगस है। और अगर फंगस है तो ये मानिए कि वो प्लांट ग्रुप का है, वो वनस्पति जगत का है। तो अगर कोई वनस्पति जगत से संबंधित है तो वो कैसे अ, जो है मांसाहार हुआ। तो पहली चीज यही है कि मशरूम जो है एक फफूंद है, तो पूर्णतः ये शाकाहार है। जब इस चीज को आप बताएंगे तो लोग मशरूम के प्रति जो है आकर्षित होंगे, वो इसको मांसाहार नहीं समझेंगे। हमारे राज्यों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे मैं उत्तराखंड की हूँ, तो हमारे उत्तराखंड में ब्राह्मण्स मशरूम नहीं खाते। ये वर्ण व्यवस्था है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन एक संपूर्ण कैटेगरी अगर मान लीजिए कि मशरूम नहीं खाती है, तो आप ये मानिए कि कैसे हम इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे, कैसे हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करेंगे, कैसे हम इसके स्वरोजगार की चर्चा करेंगे। जबकि हमारे उत्तराखंड में मॉर्केला मशरूम होता है या गुच्छी मशरूम होता है, और ये मशरूम बहुत महंगा मशरूम है विश्व का। हालांकि इसको अभी हम आर्टिफिशियली ग्रो करने में सफल हम नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये 35,000 से 40,000 रुपए किलो तक मिलता है। तो आप समझिए कि जब ये इसकी जो, अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी इसकी जैसे ही साइंटिस्ट डेवलप करके और वो लाएंगे कि इस तरह से इसको हमें आर्टिफिशियली ग्रो करना है, तो आप समझिए कि उत्तराखंड जैसे बहुत प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों वाला जो हमारा राज्य है, उसमें इस मशरूम से बहुत सारे लोगों को रोजगार संभव हो सकेगा। ठीक है, अब देखिए मशरूम के प्रति रुझान जो लोगों का अब हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि अब लोगों ने मशरूम के पोषकीय गुण के बारे में जानना शुरू कर दिया है। मशरूम के औषधीय गुणों के बारे में भी लोगों को जानकारी होने लगी है। जैसे आप मेरी इस पहली स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने मशरूम के चित्र दिखाए हैं। पहला जो मशरूम है वो मेरा बटन मशरूम है, और दूसरा ये जो है ये दूधिया मशरूम है, जिसे हम मिल्की मशरूम भी कहते हैं। Agaricus bisporus, this one button mushroom, this one is the Psilocybe indica। ये आपका स्ट्रॉ मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, जो कि वॉल्वेरियल्ला प्रजाति है, और ये हमारा ओयस्टर मशरूम है या लोटस स्पीशीज है। तो ये 4 तरह के मशरूमों का चित्र मैंने जो है यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। अब मैं मशरूम के पोषकीय गुणों की बात करने जा रही हूँ। ये तो एक मशरूम का परिचय है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मशरूम के बहुत सारे नाम हैं, कुंभी, छत्रक, अलंबी, कुहरा, चो हम उत्तराखंड में करते हैं, कहते हैं, छतरी, गर्जना, बहुत सारे नाम है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है मशरूम के बारे में। आप देखते हैं कि मशरूम अधिकतर वर्षा काल में उगते पाए गए हैं। मशरूम भले ही प्लांट ग्रुप का क्यों ना हो, लेकिन एक बात मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी कि मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसीलिए आप देखते हैं ये किसी दीवार पर, किसी प्लांट पर उग जाता है, जहां से इसको भोजन और पानी मिलता है, ये उन जगहों पर उग जाता है। ठीक है ना। अब सर नेक्स्ट कर दीजिए। मैं मशरूम के न्यूट्रिटिव वैल्यू की चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगी। मशरूम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारे देश में मुख्य रूप से श्वेत बटन मशरूम, जिसका फिगर मैंने आपको दिखाया था, ढींगरी मशरूम, धान के पुआल वाला मशरूम यानी वॉल्वेरियल्ला, और आपका ये मशरूम हमारे भारत में बहुत अच्छे से इसका उत्पादन होता है। और बाकी इन सब प्रजातियों को भी जो नीचे दे रखी हैं, इनको भी अब हम आर्टिफिशियल उगाने की टेक्नोलॉजी जान गए हैं। ये मशरूम का चित्र है जिसे आप देख सकते हैं। मशरूम की कैप दिख रही है। ये मशरूम के गिल्स हैं। जो कभी आपने मशरूम को पीछे पलटा होगा तो उसमें काले रंग का एक धब्बा सा लिखता है, उसमें मछलियों के गिल्स जैसी रचना होगी। तो ये गिल्स ही हैं, गलफड़े हैं, इसी में स्पोर्स होते हैं। ये यहाँ पर एक छल्ला होता है, आप ध्यान से देखिएगा, ये इसका डंठल है, और इसके नीचे का ये पार्ट जो है मांसपेशिया कहलाता है।
ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर मशरूम की आहार पौष्टिकता जो है वो इस वाली स्लाइड में दिखाई जा रही है और 3 मशरूम का कंपैरिजन किया गया है। तो मशरूम में सबसे अधिक जो मिलता है वो मिलता है पानी। आप देख रहे हैं तीनों मशरूम को देख लीजिए, 88 to 90% तो इसमें पानी ही है। दूसरा जो मशरूम है वो सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। मैं ये कह सकती हूँ कि मशरूम आजकल की मॉडर्न जो फीडिंग हैबिट है उसके अनुसार मशरूम एक बहुत अच्छा हमारा भोज्य पदार्थ है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बहुत मशीनी हो गए हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। तो आप देखते हैं कि डाइट कॉन्शियस लोग हो गए हैं और हर कोई अपनी डाइट में प्रोटीन का सबसे ज्यादा सेवन करता है, क्योंकि वो हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने के काम आता है, कोशिकाओं के निर्माण में उसका उपयोग होता है। उसके बाद पानी सब लोग बहुत अच्छी मात्रा में लेते हैं। वसा बहुत कम मात्रा में अपने आहार में लोग शामिल कर रहे हैं इस समय। घी तेल बहुत कम खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को लोग बहुत कम अपने आहार में शामिल कर रहे हैं। हाँ, सभी प्रकार के विटामिन और खनिज लवण और फाइबर्स को लोग अपने आहार में शामिल कर रहे हैं। तो आप इस चार्ट को देखिए, उसी तरह से मशरूमों का अगर आप कंपैरिजन देखें तो मशरूम सबसे बेहतरीन स्रोत आपका है प्रोटीन का। 3.5 से 4.7% तक मशरूम में प्रोटीन होता है जब वो ताजी अवस्था में होता है। बहुत सारे मशरूमों को हम सुखा भी सकते हैं तो ये परसेंटेज 35 से 43 हो जाता है। तो इस वजह से मशरूम एक बेस्ट स्रोत है प्रोटीन का। ठीक है, हर तरह के मिनरल्स, हर तरह के विटामिन इसमें मिलते हैं और ये देखा यार क्लास स्रोत है। तो इस वजह से मशरूम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम फिजिकल वर्क करेंगे तो हम सब कुछ डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सब कुछ फिजिकल वर्क नहीं करने के कारण हम लोगों को हर चीज को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मशरूम जो है एक बहुत बेहतरीन आहार है आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, जिसमें हम काम नहीं करते हैं और इस तरह की जिस तरह की डाइट हम चाहते हैं उस तरह की सारी चीजें हमारे इस मशरूम में मौजूद होती है। ठीक है, अब इसके बाद है कि मशरूम अरे दिन भर क्लास चला तो पता ही नहीं। अगर आप मशरूम डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मशरूम का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जा रहा है। अगर आप चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को भी देखें तो उसमें भी मशरूम के गुणों का वर्णन है और दोनों ही ये ग्रंथ हमारे मेडिकल साइंस से संबंधित हैं। मशरूम में आप समझिए कि अगर वसा नहीं कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है और शुगर की मात्रा नहीं के बराबर है, तो ये मशरूम जो हमारा है वो मधुमेह रोगियों के लिए यानी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ होता है। ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ होता है। इसके अलावा मशरूम का जो सबसे बेहतरीन उपयोग होता है वो होता है त्वचा के रोगों में। त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं मशरूम का एक्सट्रैक्ट, मशरूम का आपका पाउडर, उनको प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत अच्छा स्रोत है ये। इसके अलावा मशरूम जो है ये एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल इन तीनों गुणों से भरपूर होता है। इसके बाद मशरूम, बहुत सारे ऐसे किडनी के रोग हैं जो मशरूम से ठीक होते हैं। अगर आप बटन मशरूम का सेवन अपने आहार में करते हैं तो आपको पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर की समस्या नहीं होती है। और अगर महिलाएं मशरूम को अपने आहार में शामिल करती हैं, एक शोध का मैंने रिजल्ट पढ़ा था, उसमें ये था कि अगर महिलाएं मशरूम को ताजी चाय की पत्ती जिन जगहों पे होती है उसके साथ थोड़ा थोड़ा रोज सेवन करें तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की समस्या नहीं होगी। गैनोडर्मा या लाल मशरूम है, अभी मैं उसको आपको फिगर लास्ट में दिखाऊंगी, वो औषधीय गुणों से भरा हुआ मशरूम है। उसका प्रयोग जो है कैंसर, ट्यूमर ही नहीं एड्स को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। ऑरिकुलेरिया मशरूम है जिससे आंखों के विकार की समस्या दूर होती है। तो अगर हम एक लिस्ट लें डिजीजेस की तो बहुत ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मशरूम को खाने से वो चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मशरूम के औषधीय उपयोग हैं। नेक्स्ट, अब हाँ सर नेक्स्ट कर दीजिए। नहीं अगला नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए जी। तो ये तो बात हो गई, इसमें मैंने बात कर ली। इसमें आप साइड देख सकते हैं कि बहुत सारे कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिनसे मशरूम से ठीक हो सकती हैं। अब देखिए
मेन फोकस हमें करना है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर, तो वहाँ पर आना है। जब मशरूम की चर्चा चल रही है तो आपने ये देखा कि मशरूम बहुत उपयोगी है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप मशरूम को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते या ऐसे मशरूम जो नेचुरली कहीं उग रहे हैं, उनको आप खाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मशरूम होते हैं जो कि आपके जहरीले भी हो सकते हैं। जहरीले मशरूमों को या जो अखाद्य मशरूम होते हैं, उनको टोड स्टूल भी कहा जाता है। तो जो मशरूम बाज़ार में मिलते हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं, उन मशरूमों को आप खाइए, लेकिन कभी भी किसी अनजान मशरूम को आपको नहीं खाना चाहिए। पूरे विश्व में लगभग 14,000 तरह के मशरूम हैं, लेकिन आज भी लगभग 2,000 प्रकार के ही मशरूमों को हम पता लगा पाए हैं कि वो खाने योग्य हैं। तो वैज्ञानिक अभी इस पर और शोध कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर कोई मशरूम अपना रंग बदल दे, तो ऐसा मान सकते हैं कि वो मशरूम जहरीला हो सकता है। मशरूम को अगर आप काटते हैं और उसमें से दूध जैसा मिल्की सेक्रेशन निकले, तो मान लीजिए कि वो मशरूम जहरीला हो सकता है। मशरूम की कैप बहुत स्मूथ होती है, लेकिन अगर उस पे तिल, वाट्स इस तरह की चीज़ें हों, तो मान के चलिए कि वो मशरूम जहरीला हो सकता है। मशरूम की आप कैप को दबाइए बीच में, अगर वो नीला धब्बा उसमें लगे, तो वो मशरूम जहरीला हो सकता है। कभी भी आप बहुत पुराने मशरूम को कई दिनों से रखा है, आपने देखा वो ब्लैक हो गया, ये इसको मत हटाइएगा साइड प्लीज़। तो आप उन मशरूमों को अ, अपने आहार में मत लीजिएगा। कभी भी मैच्योर मशरूम जो ना हो, उस मशरूम को भी अपने आहार में आप मत लीजिएगा। और साइंटिफिकली जो है मशरूम को स्टॉक के ऊपर जो छल्ले होते हैं, उसके अनुसार पहचाना जाता है। बहुत सुंदर और बहुत सुगंधित भी कोई मशरूम हो तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। जैसे एमनिएटा प्रजाति के मशरूम है, एमनिएटा फेलाइडीज और एमनिएटा मस्केरिया। ये बहुत खूबसूरत होते हैं, इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन ये सबसे जहरीले मशरूम होते हैं। अगर आप इनको खाएंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। पहली बार अगर आप मशरूम का सेवन कर रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में खाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की कुछ एलर्जी जैसी चीजें हो सकती हैं। कभी कभी मशरूम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है हमारे, जैसे उससे बेहोशी, चक्कर, कभी-कभी पेट में दर्द या कब्ज़ जैसी शिकायत भी हो जाती है। तो जो मशरूम मार्केट में, जैसे श्वेत बटन मशरूम ये आप देख रहे हैं, ऑयस्टर मशरूम, धान के पुआल का मशरूम, दुपट्टा मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम, और जिनको आप पहचान लेते हैं, जैसे हमारे साइड गैनोडर्मा मशरूम, है ना? ट्रफल में बहुत सारे ऐसे मशरूम हैं जिन्हें आप आराम से खा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से अब बात शुरू करते हैं खेती योग्य मशरूम की जो प्रचलित प्रजातियाँ हमारे देश में हैं, वो ये मुख्य हैं, ठीक है? तो अगर आपको जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो मशरूम में कहाँ-कहाँ पर रोज़गार की संभावनाएँ हैं? पहली चीज़ तो ये है कि आप मशरूम को उगा करके और उसको बेच करके अपना एक एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो बेहतरीन संभावना है मशरूम में वो ये है कि आप मशरूम के बीज बनाइए, यानी हम उसको वैज्ञानिक भाषा में स्पॉन कहते हैं। मशरूम स्पॉन आप बनाइए, उसमें रोज़गार की संभावनाएँ हैं। तीसरा, मशरूम के क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, उसमें संभावनाएँ हैं। और चौथा, जो मशरूम के बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें मशरूम के ऊपर रोज़गार की संभावनाएँ हैं। तो ये 4 सेक्टर्स हैं जिसमें आप मशरूम का प्रयोग कर सकते हैं। मशरूम की खेती देखिए पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती है और मशरूम के लिए खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें ये नहीं है कि हम इसकी खेती नहीं, हम इसका उत्पादन, जो सही शब्द है वो अपना सकते हैं कि मशरूम का उत्पादन करने के लिए हमें जो है खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनको उगाने के लिए आपके घर के में जो भी स्थान है, बस एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर ज़मीन कम से कम आपकी ईंट बिछी हो, कच्ची नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर एक छत हो, चाहे वो कच्ची हो, पक्की हो, काँसे की हो, टीन की हो, मतलब हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट जो आपका वर्षा का पानी है वो आपके मशरूम पे नहीं गिरे, ठीक है? मशरूम स्पॉन की आवश्यकता है, जिस पर अभी मैं चर्चा करूँगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट की बहुत समस्या होती है। जब प्रोडक्शन हो जाता है खेती का, मान लीजिए उसके भूसे का हम कहाँ उपयोग करें, उसका हम पैडी स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ है या तमाम तरह के हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, हम उनका कहाँ उपयोग करें? तो एग्रीकल्चर वेस्ट को भी डंप करने की, हम उन्हें जलाते हैं तो दिक्कत, हम उनको मान लीजिए क्या कहते हैं, उनको हम कहीं ऐसे ही रख देते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, तो उससे हमारा पर्यावरण वो जो है बहुत प्रभावित होता है, उससे प्रदूषण होता है। तो मशरूम का प्रयोग हम कृषि अवशेषों को का उपयोग कर सकते हैं मशरूम के उत्पादन में। तो इस वजह से आप समझिए कि ये
पर्यावरण की जो समस्या है प्रदूषण की, वो बहुत हद तक ये दूर कर सकता है, क्योंकि हम एक भोज्य पदार्थ कृषि अवशेषों पर वापस उगा रहे हैं। और देखिए उसके बाद मशरूम उत्पादन के बाद जो खाद बच जाती है, जिसे हम स्पेंट कंपोस्ट कहते हैं, वापस उस खाद को हम ऑर्गेनिक खाद के रूप में वापस अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं या अपने पशुओं को आहार में दे सकते हैं। तो ये कितना अच्छा जो है साइकिल होता है। तो मशरूम का प्रयोग बहुत आप लो लेवल पे भी कर सकते हैं, जैसे इसमें बच्चे जुड़े होंगे, तो मैं ये नहीं कहती बहुत बड़े स्तर पे आप करिए। आपके घर का कोई कोना कोई हिस्सा खाली आप उसको ले लीजिए, उसके बाद उस पर एक छत है या नहीं आप देख लीजिए, नहीं है तो आप एक कुछ भी किसी भी चीज की छत डलवा दीजिए। ठीक है, आपको मशरूम का स्पॉन अभी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप तुरंत बना नहीं सकते, जब सीखेंगे तब बनाएंगे। तो आप किसी भी मशरूम का जो आप बीज है वो बीज भंडार में नहीं मिलता है, आपको कृषि के जो भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ के प्लांट पैथोलॉजी जो विभाग हैं वहाँ से संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ से आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, प्लास्टिक की पन्नियों में या फिर आप लकड़ी के रैक्स पर मशरूम या लकड़ी के बॉक्सेस पर आप मशरूम उगा सकते हैं। और इसके लिए पानी चाहिए, आप चाहें तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो आप केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और वो केमिकल ट्रीटमेंट इतने पहले किया जाता है कि उसका रेसिड्यू मशरूम में नहीं आता है, तो वो हमारी सेहत को नुकसान भी नहीं करता और बहुत कम मात्रा में 1-2 केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो मशरूम उत्पादन जब भी आप करिए, तो ये चारों पांचों मशरूम को आप ऑल्टरनेट ले लीजिए। जैसे सर थोड़ा पीछे वाली साइड दिखा दीजिए जहाँ पर चारों मशरूम दिए हुए थे। जैसे देखिए बटन मशरूम है, तो बटन मशरूम को जो है आप मिड नवंबर से लेकर के मिड जो है फरवरी तक लगा सकते हैं, क्योंकि बटन मशरूम के यहाँ पर है थोड़ा सा ये खेती का समय थोड़ा गड़बड़ मैंने यहाँ लिख दिया था। तो श्वेत बटन मशरूम की खेती अगर आपको करनी है या इसका उत्पादन आपको करना है, तो आप नवंबर से फरवरी तक का समय ले सकते हैं। यानी इसके माइसीलियल ग्रोथ के लिए चाहिए 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और फ्रूटिंग बॉडी के लिए चाहिए 14 से 18, और ह्यूमिडिटी चाहिए 70 टू 80%। तो देखिए नवंबर से आपने फरवरी के बीच इस मशरूम को लगाया। ओयस्टर मशरूम को आप लगाते हैं सितंबर से, आप स्टार्ट कर सकते हैं, मार्च तक ले जा सकते हैं। 22 से 28 डिग्री का तापमान चाहिए। मिल्की मशरूम को आप यहाँ पर लगाइएगा जुलाई से अगस्त के बीच, और उसके बाद जो ये धान का पैडी स्ट्रॉ मशरूम है इसको आप ले जाते हैं पूरा अप्रैल से जुलाई, यानी 1 साल का अगर आप चार्ट देख लें, इसी में आप चाहें तो गैनोडर्मा को भी जुलाई से लगा सकते हैं। तो 1 साल में आप अपने घर में आसानी से इन प्रजातियों को थोड़े से प्रशिक्षण से लगा सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी एक बहुत सरल मशरूम ओयस्टर मशरूम की विधि बताऊंगी कि आप उसको कैसे कल्टीवेट करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ओयस्टर मशरूम का उत्पादन बहुत सरल है, और इसको लगाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए व्हीट स्ट्रॉ, या यू कैन यूज पैडी स्ट्रॉ, दिस वन, यस यस। ये देखिए मशरूम के स्पॉन है, इसी तरह से ये मशरूम का बीज है वो इस तरह से आता है। ठीक है, इसी को मैं कहती हूँ आपको सीखना है। तो आप कच्चे माल में रॉ मटेरियल में कृषि आधारित जो अवशेष कुछ भी जो आपके पास अब ले लीजिए। यू कैन यूज द व्हीट स्ट्रॉ, यू कैन यूज द पैडी स्ट्रॉ, उसको छोटे टुकड़ों में काट करके। पानी हमें चाहिए, स्पॉन आपके सामने है, प्लास्टिक बैग्स आप ले सकते हैं, कोई भी स्थान या कमरा आप ले सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है कि एक आप ड्रम पानी लीजिए, उसमें भूसे को भिगाइए, और भूसे को भिगाने 14 से 16 घंटे आपको भूसे को भिगाना है। लेकिन यहीं पर आप चाहें तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दीजिए, गर्म पानी में भूसा डाल दीजिए और उसके बाद उसको ढक दीजिए और सुबह निकाल दीजिए रात में भिगाने के बाद। या वो थोड़ा अगर थोड़ा सा मेहनत वाली विधि लगती है तो आप 100 लीटर पानी में, एक मात्रा में बता दूं, 7 ग्राम बावस्टीन या फिर आप 500 मिलीलीटर फॉर्मेलिन को मिला दीजिए। तो उसी तरह से आप अपना कम आपको करना है तो आप और कम ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपने मिलाया और उसी में भूसे को भिगाया, रात भर आप भूसे को भिगा कर रख दीजिए, सवेरे आप भूसे को बाहर निकाल दीजिए और पानी को हटा दीजिए। ठीक है, ये देखिए इसमें देखिए मैं ये स्पॉन को तोड़ रही हूँ इस तरह से। ये स्पॉन गेहूं के बीज का बनता है, जिसको भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट प्लीज। तो इसके बाद हमें करना क्या है कि हमको ये चेक करना है कि हमारा भूसा बिजाई के लिए एकदम तैयार है या नहीं। हाँ ये वाला देखिए, ये गीला हुआ भूसा है, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इसमें देख रहे हैं सुबह हम लोगों ने निकाल दिया है। आपको इसकी नमी चेक करनी है तो इसको एक मुट्ठी हाथ में लीजिए, मुट्ठी में जैसे लड्डू बनाते हैं उस तरह से इसका लड्डू बना के देखिए।
और अगर सिर्फ हाथ में आपके पानी लग रहा है तो इसका मतलब इसकी जो नमी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ये भूसा बिल्कुल परफेक्ट है बिजाई के लिए, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसी गीले भूसे को आपको पॉलीथीन में भरना है। अभी सीखने के लिए आप ये करिए कि 1-1 किलोग्राम की ट्रांसपेरेंट पन्नी खरीदिए, ठीक है। आप 5 से 6 किलो ही भूसा लीजिए, उसको 1 ड्रम पानी में भिगा लीजिए और उसके बाद सुबह आप निकाल दीजिए। अब देखिए इस तरह की, जैसे मैंने भी यहाँ पर 1 ही किलो गीला भूसा इसमें डाला है इस पॉलीथीन में, और उस पूरे भूसे में मैंने बीज मिला लिया था, ठीक है। ये एक रफ तरीका है, लेकिन आप चाहें तो एक पॉलीथीन में भूसा बीज इस तरह से आप मिला करके एक कंप्लीट मशरूम का बेड तैयार कर सकती हैं। तो आपका काम एक ही दिन का है, बस रात में भूसा बिछाइए। इतना इजी होता है कि बस कटा हुआ भूसा लाइए, रात में भिगोइए, बावस्टीन या फॉर्मलिन जो आपके पास हो, सवेरे निकाल दीजिए। फिर आप इस तरह से भूसे में बीज मिला करके ऐसे बेड्स को सुबह तैयार कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन पन्नियों में भी अंदर से आप फॉर्मलिन का एक लेप पानी में मिला के जरूर लगा दें, ताकि वो बिल्कुल आपका पॉलीथीन स्टरलाइज हो। जिस जगह आप मशरूम उगा रहे हैं उस कमरे को भी बिल्कुल साफ पानी से धो लीजिएगा। एक छिड़काव फॉर्मलिन का वहां भी कर दीजिएगा पानी में मिला करके, दीवारों को भी आप इस तरह से कर लीजिएगा। जूते चप्पल उस कमरे में मत पहन के जाइएगा, अदरवाइज कंटामिनेशन हो सकता है। थोड़ी सावधानी आप रखेंगे तो आपकी मशरूम का उत्पादन, उसमें कोई सपोर्टिंग मतलब कि डिजीजेस नहीं लगेंगी। अब देखिए 7 से 15 दिन आपको इसको निगरानी में रखना है। ये बेड आपने जब बनाया जिसमें 15 से 20 आप छेद कर लीजिएगा चारों तरफ। अब ये मैंने यहाँ पर इस तरह से बेड्स को बांध दिया है, और 7 से 15 दिन के बीच देखिए पूरा ये कवक जाल मेरा सफेद हो गया है, ठीक है। जब ऐसी रचना आपको नजर आ जाए तो इसको रोके रहिएगा। तो आप जो है उन पन्नियों को कट कर दीजिए। अगर आप नहीं भी कट करेंगे तो भी ये देखिए छेद के सहारे पूरा ये मशरूम आपका निकल रहा है। लगभग 21 दिन के बाद ये नन्ही नन्ही कलियां आपकी निकलना चारों तरफ से शुरू हो जाएंगी, और 25 दिन में आप इस तरह से देखिए कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडी ऑयस्टर मशरूम की निकल जाएगी, ठीक है। आप सीखने के लिए करेंगे तो ये तरीका अच्छा है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री के रूप में कभी भी करें तो आपको 1 किलो से काम नहीं चलेगा। कम से कम 4 किलोग्राम की पन्नी और 4 किलोग्राम भूसा, और कम से कम 8 किलोग्राम, या तो आपको अधिक से अधिक 8 किलोग्राम रखना पड़ेगा। ये देखिए ये आपके हार्वेस्टेड मशरूम है, और मैंने क्या किया था कि जो मेरा भूसा, अब मैं इस पर आती हूँ कि कितना आपको प्रोडक्शन मिलेगा। जैसे 1 किलोग्राम आपने भूसा लिया, तो 1 किलोग्राम में आपने, हमें बीज कितना डालना है ये प्रश्न आता है, तो सूखे भूसे के भार का 3% हम बीज डालते हैं। 1 किलोग्राम मान लीजिए हमने लिया है गीला भूसा उसमें, तो हमको लगभग 30 ग्राम हमने इसमें बीज डाला था, ठीक है। इतना करने के बाद हमको 3 तोड़ाई के बाद, जैसे पहली तोड़ाई आपने कर ली तो तोड़ने के बाद आप इस मशरूम को रख लिए, लेकिन उस बेड को फेंकना नहीं है, वापस फिर उसमें पानी का छिड़काव करिएगा। जब आप पानी का छिड़काव करेंगे तो फिर से मशरूम निकलेंगे। फिर अगले 10 दिन के बाद फिर उसमें पानी का छिड़काव करिएगा, फिर मशरूम निकलेंगे। यानी एक बार जब आप मशरूम लगाते हैं तो 3 तोड़ाई आपको करनी होती है। 45 दिन तक आप उसको रखिएगा बेड को, 45 दिन के बाद उसमें प्रोडक्शन नहीं होगा। अब वो बेड की साइज आपकी छोटी होती जाएगी। उस स्पेंट कंपोस्ट को भी मत आप फेंकिएगा, उसको आप एक गड्ढे में डालिए, उसमें पानी डाल दीजिए, बाकी चीजें उसको ढक दीजिए अच्छे से, बीच में लटके पड़ते रहिए, वो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाएगी। उसको आप वापस अपने पौधे में डाल सकती हैं। ये मैंने देखिए नींबू के पौधे में वो स्पेंट कंपोस्ट डाला था, तो जमीन से नेचुरली मशरूम उगे, और साथ ही साथ मेरा नीम, बेल, ये सारे पौधों में का जो प्रोडक्शन का था वो अंतर बहुत बढ़ गया था, ठीक है ना। तो ये मशरूम की खाद जो होती है वो गेहूं के लिए, टमाटर के लिए, बेबी कॉर्न के लिए बहुत अच्छी, बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मशरूम है जिसको मैंने बताया कि आप ओयस्टर मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं। अब क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है तो हमको बहुत सारे मशरूम सारे हम एक साथ नहीं बता सकते। अब हम आपको इस दूसरी संभावनाएं बताएंगे। अच्छा, इन मशरूमों को आप ताजे यूज करिए, फ्रिज में रखिए 1 हफ्ते तक, या फिर अगर नहीं है आप इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सीधे आप पॉलिथीन में बिछाकर जमीन पर रख दीजिए। सूर्य की रोशनी से ये सुबह तक से शाम तक बिल्कुल सूख जाएंगे। ताजे मशरूमों को आप छेद वाली पन्नी में रखिएगा, लेकिन सूखे मशरूमों को आप एयर टाइट पन्नी में रख दीजिएगा। 1.5 साल तक वो मशरूम खराब नहीं होते, और उसका कोई भी पौष्टिकीय गुण जो है वो उसमें पौष्टिकीय गुणों में कमी नहीं आती है। तो आप उसका पाउडर भी बना सकते हैं। वापस आपको प्रयोग करना है तो आप गर्म पानी करिए और उन सूखे मशरूमों को डालिए, वो फिर से ताजे जैसे हो जाएंगे। तो आप उसकी सब्जी या कुछ भी, कोई भी अपना प्रोडक्ट बना करके यूज कर सकते
हैं। और बहुत कम, आप सोचिए, आप किचन गार्डन के लिए इसको लगा सकते हैं, इन बेड्स को अपने टेरेस पर या कहीं भी किचन गार्डन के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए, अगर सबसे ज्यादा समस्या आपको यहाँ पर आएगी स्पॉन प्रोडक्शन की, यानी बीज की। बीज आपको यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि हमारे देश में सबसे पहले बटन मशरूम को उगाया गया था 1961 और 62 में। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के के मेंटल और डब्ल्यू हेज नाम के वैज्ञानिकों को बुलाया गया था। तो 61 और 62 से भारत में शुरुआत हुई है और जाके 82 में हमारा पहला सेंटर बना भारत का ICAR का, नेशनल मशरूम रिसर्च सेंटर, जो कि अब हिमाचल प्रदेश में है, सोलन चंबा घाट में। तो आप चाहें तो जिसको ट्रेनिंग लेना हो आप सोलन से कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी आप, नई दिल्ली से भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, आप सब जगह ट्रेनिंग होती है, आप वहां से ट्रेनिंग कर सकते हैं, या आपकी इच्छा हो तो आप प्राइवेट सेक्टर से भी ट्रेनिंग कर सकती हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट प्लीज। ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का टिप है। मैं आती हूँ स्पॉन प्रोडक्शन कैसे करें, आप मशरूम का बीज कैसे बनाएं। नेक्स्ट, मशरूम का बीज बनाना बहुत सरल होता है और आप नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो फिगर है, मतलब मशरूम को मैंने यहाँ से आप स्टेप शुरू करते हैं। बस मशरूम का बीज आपको गेहूं के दानों पे बनाना पड़ता है। आप लोग चाहें तो, जैसे नए बच्चे अगर युवा इसमें जुड़े हैं, तो वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, वो ट्रेनिंग ले मशरूम स्पॉन प्रोडक्शन की, और उसके बाद जब वो ट्रेंड हो जाएंगे, उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो बहुत यूजफुल होता है, उससे उनको लोनिंग हो जाती है, और लोन के माध्यम से वो एक मिनी लैब बना करके मशरूम स्पॉन प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस समय 100 रुपए किलो मशरूम का बीज है, और प्राइवेट सेक्टर से इसको बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अपने मानक जो होते हैं उस हिसाब से वो ज़्यादा पैसे में भी देती हैं। बस 30 रुपए लगते हैं आपके 1 किलोग्राम मशरूम बनाने में, और 100 रुपए किलो वो आप आराम से मार्केट में उससे अधिक में बिक जाता है। ये सरकारी रेट है, प्राइवेट मतलब ज़्यादा है। तो देखिए, गेहूं के दाने पे बीज बनाते हैं। गेहूं के दाने कटे फटे नहीं होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल साफ होने चाहिए। अब दूसरी चीज इसको चाहिए, ये मशरूम स्पॉन बनाने के लिए केवल 3 या 4 चीजें चाहिए। गेहूं का दाना, डिस्टिल्ड वाटर, जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट और प्लास्टिक की पन्नी। ठीक है, ये मैंने, देखिए, इस गेहूं के दाने को सबसे पहले मैंने बॉयल किया। बस यहाँ पे रोक दीजिएगा। इसको क्या किया जाता है, जैसे 1 किलो पे मैं आपको बता रही हूँ, 1 किलोग्राम गेहूं का दाना लिया, 2 लीटर हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया, पानी हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने उसमें गेहूं का दाना डाला। जैसे ही वो हाफ बॉयल हुआ, पूरा बॉयल नहीं करना, हाफ बॉयल होने के बाद हमें मशरूम जो है वो पानी हटा देना है, और इस तरह से हमको बीज अपने रख लेने हैं। अब इसमें हमको मिलाना है जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैं मिला रही हूँ, आप देख रहे हैं ये दोनों चीजें सफेद जो है, जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको आपको जिप्सम को 2% और कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप सूखे जो है गेहूं के भार के अनुसार 2% आप इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, पीएच मेंटेन रहेगा और गेहूं के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। अब ये 1 किलोग्राम के पूरे मिश्रण को हमें एक प्लास्टिक की पन्नी में भर लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे इस प्लास्टिक की पन्नी को, नेक्स्ट प्लीज, हम रखेंगे अपने ऑटोक्लेव में। हमारा मकसद होता है कि ऑटोक्लेव में रखने का, कि वो पूरी तरह से स्लाइज हो जाए, उसमें कोई और बैक्टीरिया या फफूंद आक्रमण नहीं करे। देखिए, ये इसको मैं इसमें रख रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लीज, अगला 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 अगली स्लाइड कर दीजिए सर प्लीज। चलिए, इसके बाद हम इसको, देखिए हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ऑटोक्लेव आप सभी आपने देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट है, नहीं देखा होगा तो आप मान के चलिए प्रेशर कुकर की तरह एक छोटी सी मशीन होती है, और इसमें नीचे एक स्टैंड होता है। बस 1 मिनट रुक जाइए सर। उसमें पानी आप डालेंगे, उस स्टैंड पर आप अपने पैकेट्स रखेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे और उसका प्लग लगा देंगे। 0 to 15 पे जैसे हो जाता है, विसिल आएगी, वैसे आप उसको बंद कर देंगे। फिर 15 से 0 जैसे आ जाएगा, तो फिर आप उसको खोल करके अपने पैकेट्स को निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको लाते हैं लैमिनल फ्लो में। ये दूसरा हमारा एक छोटी मशीन दूसरी होती है जिसमें हम काम करते हैं। यहाँ पर हमको करना क्या होता है, हमें इस पैकेट में केवल मशरूम का जाल डालना होता है। तो हम जाल भी, अगर आप शुरू में मसीलिया है वो भी आप खरीद लीजिए, 175 का एक टेस्ट ट्यूब मिलता है। अभी सीखने के लिए आप इसमें नन्हा सा एक जाल डाल दीजिए, और जाल डालने के बाद आप इसको, इसकी गर्दन पर यहाँ पर एक प्लास्टिक का प्लग लगाते हैं, और उसके बाद कॉटन लगा के इसको बंद कर देते हैं। 7 से 15 दिन के बीच
ये कंप्लीट आपका पैकेट बिल्कुल भर जाएगा सफेद माइसीलिया से। जब ऐसा हो के जाए तो मान के चलिए कि आपका मशरूम स्पॉन बिल्कुल तैयार है। आप इसको रख दीजिए बीओडी में, नहीं तो फ्रिज में आप रख सकते हैं और 6 महीने तक आप इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो मशरूम स्पॉन में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि जब आप मशरूम उत्पादन करेंगे तो मशरूम की समस्या बीज की बहुत आएगी। ये मैं यही कर रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ जाल। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। हाँ अगला, हाँ प्लीज। ये देखिए मैंने कॉटन का वो लगा दिया प्लग और नीचे इसको रख दिया। ये इस तरह से ये कंप्लीट आपका तैयार हो जाता है, ये मशरूम का स्पॉन जो है लैब में। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। और बहुत कम इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, बहुत मिनी लैब में हम ये काम कर सकते हैं। मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट मिला था जिसमें लैब के लिए बहुत कम पैसा मिला था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और अपनी मिनी लैब बना ली। अब देखिए ये क्या है, मशरूम का जो मैंने कहा माइसीलिया आपको खरीदना पड़ता है, आप उसको भी अपने पास बना सकते हैं। मशरूम एक बार आप सीख लीजिए तो मशरूम के माइसीलिया को अपने पास हमेशा बना के रखते रहिए और उसको रिकल्चर करते रहिए। ये जो आप देख रहे हैं बॉटल में, ये पीडीए मीडिया है, पोटैटो डेक्सट्रोज अगर मीडिया। ये आपको पेट्री प्लेट्स में नजर आ रहा है। इसको बनाना भी बहुत सरल होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे नाम आप देख रहे हैं पोटैटो डेक्सट्रोज अगर, पीडीए। पोटैटो माने आलू, डेक्सट्रोज आपका शुगर है और अगार आपका एक मटेरियल है जो समुद्री शैवाल से आपको मिलता है। आप तीनों को ले लेते हैं। 1 लीटर डिस्टिल वाटर हम गर्म करते हैं, उसमें आलू की स्लाइसेस हम काटते हैं, आलू छील के धुल के उसके स्लाइसेस 250 ग्राम आलू का हम डालते हैं। और यहाँ पर हम उल्टा करते हैं, स्लाइसेस को हटा देते हैं, चिप्स जो होते हैं उसको हटा देते हैं, उस पानी को ले लेते हैं। उस पानी में 20 ग्राम अगर डालते हैं और 20 ग्राम हम डालते हैं डेक्सट्रोज। पहले डेक्सट्रोज हमने डाला, फिर जैसे हम अगर डालते हैं वो बहुत तेजी से गाढ़ा होता है, क्योंकि अगर अगर गाढ़ा करने के लिए होता है और वो बहुत तेजी से गाढ़ा होता है। उसको तुरंत ही गरम गरम आप कोनिकल फ्लास्क में भर के रख लीजिए, काफी दिनों तक वो ये एक तरह से खाना होता है इस फफूंद का, है ना। इस मीडिया जो है वो फफूंद का खाना है। जब आपको माइसीलिया डेवलप करना हो तो आप इस पेट्री प्लेट्स में ऐसे डालिए, मीडिया को ठंडा करिए और एक नन्हा सा जाल इसी में बस लगा दीजिए। ये पूरी प्लेट आपकी देख रहे हैं इस तरह से भर जाएगी, व्हाइट व्हाइट माइसीलिया आपके पास हो जाएगा। फिर आप इसको टेस्ट ट्यूब में प्योर कल्चर बना के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट आप पीडीए मीडिया भी बना सकते हैं और कंप्लीट आप मशरूम स्पॉन भी बनाते हैं। और आप यकीन मानिए कि जो इसको आप अगर सीख लेंगे, अगर आप मिनी इंडस्ट्री डाल देंगे, तो इलाहाबाद में तो कहीं भी स्पॉन नहीं मिलता है, बस शुरुआत में मिल जाता है। और कानपुर या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से में मंगाना पड़ता है या दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से मंगाना पड़ता है। मैं खुद भी लैब में पहले बनाया करती थी, लेकिन अब समय बहुत कम मिलता है, तो अब ये चीज़ें थोड़ा नहीं हो पा रही है। लेकिन आगे कभी संभावना होगी तो हम इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, अगली स्लाइड पर दिखा दीजिए सर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद देखिए एक और। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो ओयस्टर मशरूम है जो लगे हुए हैं। देखिए ये पेट्री प्लेट, ये आपका फाइनल कल्चर है और ये देखिए कल्चर है सारे। ये मशरूम स्पॉन है, ये लैब है। और हम लोगों ने कोशिश की कि हम कई, जैसे हमने सिर्फ गेहूं के बीज पे ही नहीं, हमने बजरी पे, हमने चावल पे बहुत कोशिश की, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट जो आया जो आपका गेहूं के दाने पर ही आया। ठीक है ना। ये एक मैं दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत मशरूम है, लेकिन विशैला मशरूम है। तो ये फोटोग्राफ्स है आप लोगों के लिए कि देखिए कितना सुंदर होने के बाद। ये देखिए इसके ऊपर कितने, इसकी जो टोपी है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, इस पे ये देखिए वार्स जैसे निशान है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, तो इसके बाद मैं बताऊं कि हाँ नेक्स्ट प्लीज। ये मशरूम की चर्चा मैं कर रही थी। हमारे उत्तराखंड का गुच्छी मशरूम है जो बहुत महंगा होता है, 35 से 40 हजार रुपए किलो ये मिल रहा है इस समय। और आप समझिए जिस दिन इसकी टेक्नोलॉजी हम जिस दिन हम इसको आर्टिफिशियली ग्रो कर लेंगे तो ये वहाँ के लिए रोजगार की संभावनाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्लीज। इसको जंगलों से लोग इकट्ठा करते हैं और फिर इसकी सब्जी बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये है कि जैसे महिलाएं हैं, अगर वो चाहें, जैसे मशरूम उत्पादन में एक संभावना हो गई। ये देखिए ये गैनोडर्मा मशरूम जिसकी चर्चा की थी मैंने, लाल मशरूम है और ये औषधीय गुणों से भरा हुआ मशरूम है। इसका प्रयोग बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। जहां भी गैनो शब्द लगा रहे आप समझ जाइए कि वो प्रोडक्ट जो है मशरूम से बना है। जैसे साबुन है, आपके बहुत सारे फेशियल क्रीम्स हैं,
फेस पैक्स हैं, उन सब में गैनोडर्मा मशरूम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो भी गैनोडर्मा से बनाई जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए अगर लेडीज हैं या लड़कियां हैं, वो मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, इसमें मशरूम उत्पादन में या स्पॉन बनाने में सबसे अच्छी बात है कि उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कोई ये समझे कि हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम मशरूम उत्पादन नहीं कर पाएंगे या स्पॉन नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये इसमें हर किसी के लिए, स्त्री पुरुष, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, सबके लिए संभावनाएं हैं, है ना। अब इसके क्वालिटी बेस्ड अगर आप प्रोडक्ट बना लें, आपको डेली अगर खाना है, कभी कभी खाना है, तो आप जैसी नॉर्मल आप बना सकते हैं, सब कुछ बनाइए, लेकिन क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट जो बहुत दिन तक रहने वाले हैं, जैसे मशरूम पिकल्स बहुत मशहूर हैं, मशरूम के पापड़ बहुत मशहूर हैं, मशरूम सॉस, मशरूम सूप, मशरूम जूस, ये चीजें जो बहुत दिन तक हम रख सकते हैं, मशरूम की बड़ियाँ, मशरूम बिस्किट्स, मशरूम चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं और इनको अगर क्वालिटी बेस्ड हम बना लें तो यहाँ पर भी संभावनाएं मशरूम में हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। ये दिख रहा है, देखिए मशरूम पेड़ पे उगा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपना भोजन और पानी यहाँ से ले रहा है, तो क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये प्लांट ग्रुप का है, लेकिन फिर भी जो है देखिए ना क्लोरोफिल होने के कारण वो इस तरह से उगता है, ये जो मैंने पहले बात की थी। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, चाहे आप सोलन से लीजिए, चाहे किसी विश्वविद्यालय से लीजिए, चाहे किसी एनजीओ से लीजिए, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर से लीजिए, आप सबकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप सब में आप वहाँ से पता करिए, उनके शेड्यूल्ड आ जाते हैं और ट्रेनिंग वीकली भी होती है, 15 दिन की भी होती है, 1 महीने की भी होती है, फ्री ट्रेनिंग भी होती है और वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और वो बहुत यूजफुल होते हैं। और भारत सरकार 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन, 5 लाख तक का लोन भी देती है मशरूम उत्पादन के लिए, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बैंक जो होते हैं वो भी लोन देते हैं, इसलिए वहाँ भी दिक्कत नहीं होती। ज़रूरत है कि आप अच्छे से ट्रेनिंग करिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए और उसके बाद अच्छा, बहुत सारी बच्चियाँ जो इसमें अगर जुड़ी होंगी, पढ़ रही हैं, तो एमएससी के बाद या पीएचडी के बाद वो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे किरण स्कीम है केवल लड़कियों के लिए बीएसटी की, उसमें मैंने खुद दो स्कीम्स दिशा और किरण बीएसटी की चलाई थी। डीबीटी में मुझे मिला था एसआरएफ। तो इस तरह की संभाव, ऐसा नहीं है कि आप मशरूम सिर्फ उगाइए, इन जितने भी कृषि आपके आधारित व्यवसाय मैंने कहा, उन सब में आप आपकी रिसर्च की संभावनाएं हैं, सर्विस की संभावनाएं हैं, स्वरोजगार की संभावनाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जाने की संभावनाएं हैं। तो आप जरूरत इस बात की है कि आप अवेयर होइए, उसको जानिए, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग करिए और उसके बाद उसमें पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं, जब मैंने शुरू किया था, मैं बहुत मशरूम्स लोगों को बांटती थी, तो बहुत लोग डरते थे, अरे हम कैसे खाएं। मैं किसी को देती थी, मुझे डर लगता था सुबह तक उसका क्या होगा, वो ठीक रहे, किसी तरह ईश्वर से बनाती थी, कहीं कोई दिक्कत हो गई तो मेरे ऊपर आएगा। लेकिन देखिए उस समय डिमांड मुझसे मेरी कम थी, आज मुझे डिमांड बहुत आती है कि इतने मशरूम हमें दीजिए, हमें 20 किलो भिजवाइए, हमें। तो आज अब मैं जॉब में हूँ तो मुझे उगाना मुश्किल हो रहा है, उस समय जब मैं बहुत उगाती थी तो मुझे उसको बेचना मुश्किल होता था, क्योंकि सरकार में तो हम बेच नहीं सकते थे, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रचार प्रसार करते थे। पर अब जो है ये चीजें हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मुझे समय कम है, तो आप में से कोई जो लोग जुड़े हैं, हो सकता है कि उन्हें ये चीज ठीक लगे और वो इस दिशा में काम करें। तो मैं इसी के साथ अपनी बात यहाँ पे समाप्त करती हूँ और मैं डॉक्टर रहमान सर का, प्रिंसिपल मैडम का और सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम को एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ, हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. You have elaborated the techniques of mushroom cultivation in very easy language, and you also focused on the biological importance of mushroom, that it is an important source of protein, vitamins, carbohydrates, and another different biomolecules are present in this mushroom. And you have also focused that how this mushroom is used for as a substitute food of meat product. And you also given the importance and told about how it is a mushroom is also maybe watch business. And I think all student participants have been benefited from this, and they have also learned these techniques, that how can we culture this mushroom at a small scale in our home and at any farmhouse, and we can earn from these techniques. There are some participants who have some issues and questions.
one part in the chat box, one student is Kajal Kesharwani. He has asked that मशरूम प्रोडक्शन के लिए आइडियल क्लाइमेट कंडीशन क्या है? देखिए, मैंने बताया था उनको कि जितने भी मशरूम है हर किसी के लिए अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप बटन मशरूम के लिए मैंने बताया कि मिड नवंबर टू मिड फरवरी शुरू करें, यानी कि उनको उसमें 2 कंडीशंस होती हैं बटन में कि आपकी जो फंगल ग्रोथ है वो तो 23 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसको चाहिए तापमान, लेकिन वही फ्रूटिंग बॉडी के लिए उसको 14 टू 18 चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लूरोटस स्पीशीज की बात करें तो ये जाएगा 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे। तो वो जैसा हमारे वहाँ सितंबर से भी हम उसको शुरू कर सकते हैं, मार्च तक ले जा सकते हैं। अब आप मिल्की मशरूम की बात करें तो वो 28 से 32 का टेम्परेचर उसको चाहिए, तो हम उसको जुलाई से शुरू करके सितंबर तक ले जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पैडी स्ट्रॉ देखिए तो वो गर्मी का मशरूम है, तो ऑब्वियस वो 32 से 35 तक जाता है, तो हम उसको अप्रैल से शुरू कर सकते हैं। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से हम नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री लगानी है, बड़े स्तर पर करना है, तब तो आप उस तरह से काम करोगे, लेकिन आप हर चारों मशरूम को अल्टरनेट पूरे साल कर सकते हैं। And one question is similar. What? Same Chitra Lekha is asking, ma'am, which season we can plant mushroom seed? In which season? मशरूम सीड के लिए कोई सीजन नहीं चाहिए, ये तो लैबोरेटरी वर्क है ना, आप Yeah. इसको कहीं बाहर तो नहीं ग्रो कर सकते हो ना, तो ये तो आपको किस पूरे एवरी सीजन आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि हर मशरूम के लिए अलग अलग माइसीलिया हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ढिंगरी के लिए हमने ओयस्टर का कर लिया, ओयस्टर के लिए हमने ढिंगरी का कर लिया। और स्पॉन भी जब खरीदे कोई पहली बार तो वो कहें कि हमें बटन मशरूम लगाना है तो वो बटन का स्पॉन लेंगे, वो कहें कि हमें ढिंगरी लगाना है हम उसका स्पॉन लेंगे। मान लीजिए हमने ध्यान नहीं दिया, मशरूम स्पॉन दे दीजिए, तो हम कोई भी स्पॉन लेके चले आए, हमने टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाई बट वो मशरूम होगा नहीं। तो मशरूम स्पॉन के लिए कोई टेम्परेचर नहीं, उसको आप हमेशा किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, जो उसका प्रोसेस मैंने पूरा बताया ही है। और जिस मशरूम को हमें लगाना है उसी के स्पॉन को हमें खरीदना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशरूम्स आर देयर व्हिच वी कैन ईट? 5 तो मैंने आपको बता ही दिए कि आप 5 मशरूम, बटन, ढिंगरी, मिल्की, पैडी स्ट्रॉ, गैनोडर्मा, ये सब आप आराम से खा सकते हैं। और नेचुरली जिनको नहीं पहचान पाएंगे आप, जैसे गुच्ची मैंने दिखाया, आप इसको खा सकते हैं। जो आप पहचानते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग पहचानते हैं, उनको आप आराम से खा लीजिए। जिनको नहीं पहचानते तो जो मार्केट में आप उन्हीं को खाइए अभी, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चंस आप भेज दीजिएगा चाहे मुझे, तो मैं उसमें आपको आंसर भेज दूंगी, क्योंकि हम लोग को अभी वहाँ यूनिवर्सिटी वाली भी वर्कशॉप अटेंड करनी है ना, वो मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझाया सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आगे हम आपसे जरूर हेल्प लेंगे इसके लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर अनुराधा मैम to propose vote of thanks. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. My warm greetings to one and all. On the behalf of SS Khanna Girls Degree College fraternity, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks for IIC calendar activity on the theme Session Discussion with Innovation and Startup Ecosystem Enablers, organized by the Institute Innovation Council of SS Khanna Girls Degree College under Ministry Innovation Cell, Ministry of Education, Government of India. At the outset, I extend my heartfelt gratitude to the eminent speaker of this session, Dr. Hemlata Pant, ma'am. Ma'am, your insightful address on self-employment opportunities on life sciences was full of information. Ma'am, your simplicity attracted us very much. We are really enlightened with your knowledge in very simple manner. I would like to thank our principal and president of IIC for his enthusiastic support. Her words of encouragement, her able guidance has always encouraged us. Our heartfelt thanks to all the participants, total 367 registration from different colleges and different streams. We hope you all found the session helpful and informative.
A special thanks to the organizing committee for their unflinching support and coordination. With these words and a kind message, we conclude the session. Now, all the participants requested to fill the feedback form shared on different WhatsApp group and chat box for this session. We will be back with you with such more interesting topics relevant to the present scenario. For more updates in this regard, keep visiting our college website. Stay healthy and stay safe. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. sir. So we can leave now, no? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. हमने कर लिया।